Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do fifth part of the chapter, that is election and representation. In last class we have discussed basically election procedure for the member of Rajya Sabha in our country. Along with that we have discussed why did India adopt system that is FPTP, first past the post system. I hope till here everything is clear to all of you. So today we are going to start from here. Let us discuss. So in the on this particular page, this cartoon is given to you, right? And what is shown to you? These are the leaders of basically Congress party, right? Cartoon of Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, right? And they are trying to listen that person who is very teeny person. Okay, so let us discuss what this particular cartoon is showing to you. These member of the ruling party are trying to listen to the teeny opposition. Was this the effect of our electoral system? कि हमारी कंट्री में टीनी अपोजिशन जो एक बिल्कुल छोटा सा अपोजिशन है उसकी बात को भी बड़े ध्यान से सुना जा रहा है एंड द क्वेश्चन इज कि क्या ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का इफेक्ट है सो कैन वी से यस ऑफ कोर्स यस why yes because we have understood that India wanted to ensure accountability in each and every aspect. And that's why we have gone that particular system. We have gone with that particular system that was FPTP system, right? And that's why the ideas which opposition were providing that were also important in our country. Got it? So more importantly, the makers of our constitution also felt that PR based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. अब देखो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. Now, what do you understand by parliamentary system? Right? A simple or you can say separate question will be asked from you, can be asked from you. क्या होता है parliamentary system? Parliamentary system is basically that type of system in which you are having two type of executive basically. One is real and second is nominal. In our country prime minister is real executive and the president of our country is nominal executive. This is parliamentary system which we have adopted from British, right? Which we have also discussed in the first chapter, Constitution Why and How, in which we have discussed the major provisions of our constitutions which we have taken from other countries. Right? We shall study the nature of parliamentary system of executive in the next topic, in the next chapter. This system requires that executive has majority in the legislature. और जो हमारा सिस्टम है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली इस सिस्टम में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वो क्लोज रिलेशन कैसे होता है बिकॉज आवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर क्यों होता है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट तब बनती है जब मेजोरिटी होती है और मेजोरिटी कहाँ पे लेजिस्लेचर में इट मीन्स लोकसभा इन अ कंट्री गॉट इट तो इस सिस्टम में बेसिकली क्या है मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है लेजिस्लेचर में you will notice that PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of the share of the votes. और पीआर सिस्टम में हमने क्या स्टडी किया पीआर सिस्टम में हमने यही स्टडी किया कि इसमें बेसिकली सीट्स कैसे एलोकेट होती हैं अगर मान लिया किसी पर्सन को किसी पर्सन नहीं सॉरी किसी पार्टी को 5% वोट्स मिली तो 5% सीट्स उसको लेजिस्लेटिव में मिल जाएंगी लेजिस्लेचर में मिल जाएंगी so there cannot be a clear majority, right? And the seats will be given to each and every party on the basis of the share of its votes. Got it? The FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their shares of votes would allow. अब देखो हमारा जो सिस्टम है FPTP system in the last class we have discussed now the situation of Congress that was able to secure only 48% votes but even then it was able to cover 80% seats of the Lok Sabha. So this is shown to you कि जो आपका FPTP सिस्टम होता है उसमें बेसिकली किसको बेनिफिट मिलता है लार्जेस्ट पार्टी को
क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मिल जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंट्री। राइट, अब देखो यहाँ पे यही शो हुआ है कि 40%, तो इसको 135 सीट्स मिल गई। अब ये वाली पार्टी आप ये कंसीडर करोगे कि इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसको 6% वोट्स में 6% वोट मिली, इसको 8 सीट्स मिल गई। इसको 5% वोट मिली है पीएमके को, बट इवन 0 सीट्स इज गिवन टू यू, है ना, 0 सीट इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। बीजेपी हालांकि हमने डिस्कस किया था कि कुछ एक क्राइटेरिया है कि 3.25% आपके पास मिनिमम वोट्स होनी चाहिए, उसके बाद आपकी सीट्स डिफाइन हो जाती हैं लेजिस्लेचर में। बट यहाँ पर देखो 5% होने के बाद भी एक भी सीट नहीं है, 6% वोट्स होने के बाद भी एक भी सीट नहीं है। So, in our country, the system which is followed by us, in this particular system, the largest party is able to get some extra votes because of the system of the country, right? So, thus the this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of a stable government. इसलिए ये सिस्टम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जो पॉसिबल बनाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कि वो स्मूथली फंक्शन करे और एक स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर दे। फाइनली द एफपीटीपी सिस्टम encourages voters from different social group to come together to win an election in a locality। अब इसके अलावा हमारे यहाँ देखो वहां पर तो क्या होता है, आपको आपकी परसेंटेज के बिहाफ पे सीट्स दे दी जाएंगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राइट बस। बट इसमें क्या होता है एफपीटीपी सिस्टम में, आप ट्राई करोगे कि सारे के सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप आपके साथ आ जाएं, राइट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट विल बी मोर आंसरेबल गवर्नमेंट। गॉट इट। अब इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमने स्टडी किया ना, वहां पे एंटायर लोकेलिटी के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होगा जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं एफपीटीपी में, हम शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को कंबाइन करने की हम ट्राई करते हैं, सो दैट वी कैन विन द इलेक्शन इन एनी लोकेलिटी। In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to form its own nationwide party। और पीआर सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, पीआर सिस्टम एनकरेज करता है किसको, ईच कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी की कि वो अपनी क्या करे, नेशन वाइड पार्टी बना ले। दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और मे बी यही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में, ताकि अब हर एक ऐसी कम्युनिटी हो ताकि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, हर एक कम्युनिटी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, आंसरेबिलिटी इंश्योर हो सके। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एफपीटीपी सिस्टम के साथ जाना बेहतर समझा। गॉट इट। होप इट्स दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Next is the experience of the working of the constitution has confirmed the expectation of the constitution makers। इसके अलावा जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, किसका एक्सपीरियंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग का, जैसे उसने वर्क किया, फंक्शन किया है, दैट हैज आल्सो कंफर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। उसने भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया हमारी एक्सपेक्टेशंस को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को रिगार्डिंग थी। द एफपीटीपी सिस्टम हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड फेमिलियर टू ऑर्डिनरी वोटर। और इसकी एक और जो सबसे बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इट इज वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, along with that it is familiar to ordinary voters, है ना। because we have seen in last class I have told you how the members of Rajya Sabha are elected, and that was that complicated that I have repeated it twice or thrice so that you can understand it, है ना। now understand, after being a student of political science, if it this is tough for you, then how the simple voter, ordinary voter of our country will be able to understand it, क्योंकि ये इजी है, लोग इसको इसके साथ इजीली फेमिलियर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस सिस्टम। इट हैज हेल्प्ड लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इसके अलावा इसने, अब देखो एक पार्टी अगर मेजोरिटी में आएगी तो इसका बेनिफिट देखो क्या होगा, द बेनिफिट विल बी दैट पार्टी विल बी मोर आंसरेबल टू यू, है ना। अब देखो अगर कोई सीट किसी पार्टी को मिल रही है, कितनी सीट किसी पार्टी को मिल रही है, सो नो वन इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल,
बट हियर इन आवर कंट्री वी आर हैविंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ सेंटर लेवल पे बुरा होता है देन इन प्रेजेंट टाइम वी विल कर्स टू बीजेपी. If anything good is happening then we will be praising the BJP. मतलब someone is there who is ready to take the credit of success or failure, right? The system has also discouraged political party that get all their votes only from one caste or community. और इस सिस्टम ने इसको भी डिस्करेज कर दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कास्ट या फिर कम्युनिटी से वोट गेन करती है. Because we have discussed right now only that if we want to get you can say votes of the people, if we want to win the election of any particular area, we will have to attract the people of all the groups. Normally, the working of the FPTP system results in a two party system. और normally क्या होता है, FPTP system result देता है in a two party system. और इसका मतलब क्या हुआ? This means that there are two major competitors for power and power is often shared by these two party alternately. बेसिकली क्या होता है, जहां पर ये सिस्टम होता है ना, एफपीटीपी सिस्टम, बेसिकली वहां पे आपको हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है कि पावर के लिए हमेशा दो लार्ज ग्रुप होंगे जिनमें हमेशा टसल चलता रहता है. एंड पावर विल बी डिवाइडेड अल्टरनेटिवली, राइट? आप अपनी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो. वी आर एबल टू सी, एक बार हम वन पार्टी डोमिनेंस एरा देखते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कांग्रेस. अभी 2014 से वी आर एबल टू सी डोमिनेंस ऑफ बीजेपी, है ना? तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि दो ही बड़ी पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिवली फाइट करती रहती हैं. इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और द थर्ड पार्टी टू एंटर द कंपटीशन एंड शेयर पावर. और ये एक छोटी पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपटीशन में एंटर करना और पावर को शेयर करना. In this respect, the experience of FPTP in India is slightly different. After independence, though we adopted the FPTP system, there emerged a one party dominance, and along with it, there existed many smaller parties. अब देखो, as I was telling you कि हमारी कंट्री में हम लोगों ने देखा है era of one party dominance, है ना? तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पार्टीज, although we are accepting कि कुछ लार्ज स्केल की पार्टीज हो जाती हैं, but even then, there is the existence of smaller party also. That is the beauty of Indian FPTP system, right? And we are able to understand the importance of these small parties after 1989. Basically, from here in our politics, there was a change. और वो चेंज क्या था कि हमारी कंट्री में बेसिकली जो गवर्नमेंट बन रही थी दैट वाज अलायंस गवर्नमेंट, राइट? So after 1989, India is witnessing the functioning of the multi-party coalition. At the same time, gradually, in many states, a two-party competition is emerging. तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है? 1989 के बाद अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करते हो तो वी आर एबल टू सी कि छोटी छोटी पार्टीज क्या कर रही हैं. आप लोगों ने 10th क्लास में फेडरलिज्म चैप्टर स्टडी किया होगा, राइट? उसमें आपने एक टाइम पीरियड स्टडी किया होगा बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहीं ना कहीं. और वो बार्गेनिंग बेसिकली क्या होती है कि जब छोटे छोटे स्टेट कहीं ना कहीं इतने पावर में आ जाते हैं कि वो सेंटर के साथ बार्गेन कर सकें कि वी विल गिव यू सपोर्ट एंड यू विल हैव टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर नीड, राइट? तो ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है इन आवर कंट्री. But this distinguishing feature of India's party system is the rise of coalition has made it possible for new and smaller party to enter into electoral competition in spite of the FPTP system. और यही जो हमारा सिस्टम है इंडियन का, जो बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट का जो फीचर है, उसने ही वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द राइज ऑफ कोएलिशन, है ना? और इस कोएलिशन ने कहीं ना कहीं पॉसिबल बना दिया कि जो हमारी न्यू और स्मॉलर पार्टीज है ना, वो एंटर कर जाएं पॉलिटिकल कंपटीशन में, राइट? हालांकि हमारे यहाँ एफपीटीपी सिस्टम है, राइट? एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट इवन देन देखो हमारी कंट्री की ना हर एक फीचर कुछ डिफरेंट ही होती है. गॉट इट? as we were discussing the chapter constitution why and how, that time also I told you कि कुछ कंट्री इतना डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है that it is not easy to change it according to the changing situation. और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बना देती हैं. बट इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट?
और यही सिस्टम हमारे इलेक्टोरल कंपटीशन के साथ भी हो रहा है. Although we have adopted FPTP system, but even then it is having some unique features. Got it? Hope till now it's clear to all of you. Now we are going to discuss reservation of constituencies. अब देखो हमने पूरी की पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया. इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था? इसका इम्पैक्ट ये हो सकता था दैट ओनली दोज पीपल हु आर इन द मेजोरिटी, हु आर हैविंग इन्फ्लुएंस impact on the society, they could have got chance again and again, again and again. And that person and that particular group who is in the minority, those person or that particular group's right could be violated. इसीलिए हम लोगों ने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया? दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया. अब देखो ये क्या है? We have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest vote in the particular constituency is declared elected. क्या सिस्टम है? यही पढ़ते आ रहे हैं ना हम कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके लीडर को हम बोल देते दैट ही और शी इज द विनर. दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप. बट देखो पीआर में अगर आप देखते हो ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, वहां क्या बेनिफिट होता है कि छोटी छोटी पार्टी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. बट द सिस्टम विच वी हैव अडॉप्टेड इन आवर कंट्री दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक. अब वो कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता था? क्योंकि अगर हमने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो कहीं ना कहीं छोटे ग्रुप के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता था. राइट, दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट. और ये हमारे साथ तो बहुत इजीली हो जाता, प्रॉब्लम्स इजीली क्रिएट कर लेता. क्यों? Because in India we are having diversity, huge diversity. We have had a history of caste based discrimination, क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री बिल्कुल कास्ट बेस पे रही है जिसमें कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social group and caste can win everywhere and oppressed social group may continue to remain unrepresented. और देखो क्या हो सकता था कि हमारी हिस्ट्री ऐसी हो जाती कि जो एफपीटीपी सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया ना उसमें कुछ ही ग्रुप का ही रिप्रेजेंटेशन होता. कास्ट के बेस पे क्या हो सकता था? जो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप था ना जिसको हमने रिप्रेस करके रखा, दैट कुड बी, दैट कुड रिमेन, यू कैन से अनरिप्रेजेंटेड. ऐसा भी हो सकता था ना कि उनको रिप्रेजेंटेशन के चांस ही ना मिले. राइट? Our constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social group. And the situation and the condition of our society was very clear in the mind of our constitution makers, and they were very clear that if we did not give representation to these people who are oppressed, who are repressed, then it will create problem only, because some people they will never give them chance to come in the power. Right? So this issue was debated even before independence, and the British government had introduced separate electorates. अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप लोगों ने ना, जब इंडियन हिस्ट्री आप लोगों ने कभी पढ़ी हो तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. राइट? आपने एट्थ नाइन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में स्पेसिफिकली आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, जहां ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाई थी. बेसिकली वो सिस्टम क्या था कि इफ एनी पर्सन, इफ एनी वोटर इज हिंदू, देन ही विल बी कास्टिंग हिज और हर वोट टू हिंदूज रिप्रेजेंटेटिव. If anyone is Muslim, then he or she will be casting his or her vote to Muslim representative only. Right? This system meant that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community. समझ आया? यानी अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो ही आप उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करोगे. कहीं ना कहीं यहीं से ना हमारी कंट्री में डिवाइड और रूल की पॉलिसी भी शुरू हो जाती है, विच वॉज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit for our purpose. और अगर हम इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर हम ऐसा ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देते तो अब देखो प्रॉब्लम क्या थी? एक तो डिवीजन हो रहा था हमारी कंट्री का, है ना, डिवीजन हो गया था. अगर उसके बाद हमने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया होता
तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जनरेट हो जाती। वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो कभी इंडिया के साथ खुद को कनेक्टेड फील ही नहीं कर पाता। Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituencies. इसलिए हमने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये सिस्टम कैसा था कि कुछ सीट हम क्या करेंगे, इलेक्शन कॉमन कराएंगे, बट कुछ सीट्स को हम रिजर्व कर देंगे और उस रिजर्वेशन की भी रोटेशन होगी। अब आप लोगों ने सुना होगा ना, अब जब इलेक्शंस होते हैं, नाउ यू आर एबल इनफ टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये होता है, स्पेसिफिकली अगर आपके गांव में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो कैंडिडेट्स हैं, दे विल बी एससी कैंडिडेट्स ओनली, दे विल बी एसटी कैंडिडेट्स ओनली, दे विल बी फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, है ना? दिस इज द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, right? In this system, all voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved. अब यहाँ पे हम सभी एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, है ना? जो आप उस पर्टिकुलर एरिया से आप बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में हम ये देख लेते हैं कि अगर वहां पे सपोज हमारी कंट्री हिंदू मेजोरिटी की है, बट वी आर एबल टू सी कि कोई एरिया है जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, तो हम वहां पे सीट्स को क्या कर देते हैं, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर देंगे, राइट? तो मतलब हम क्या इंश्योर करते हैं, सो दैट वी कैन गिव रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एफपीटीपी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, राइट? अब देखो ये सिस्टम, दिस वाज लेफ्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या, कि वही ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन। अब ये क्या कर सकता था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव बीन अ कर्स टू इंडिया। ये हमारे लिए कर्स की तरह भी हो सकता था, अभिशाप की तरह हो सकता था। हैव डन इन calculable harm to our society, to our country. Supreme electorates have, sorry, separate electorates have bared our progress. ये क्या कर सकता था, हमारी प्रोग्रेस में हर्डल क्रिएट कर सकता था। वी मुस्लिम्स वांट टू मर्ज इन इन द नेशन। हम क्या चाहते हैं कि हम जो मुस्लिम है वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं। फॉर गॉड से कीप योर हैंड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखो वो ये नहीं चाह रहे कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स करो, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने अगर इंट्रोड्यूस करवा दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए वो क्या है, दिस इज द, अब देखो ताजमुल हुसैन, ताजमुल हुसैन, दिस इज अ मुस्लिम पर्सन हु इज सेइंग कि हमें एक, हम मर्ज होना चाह रहे हैं इंडिया के साथ, एक नेशन के साथ, लेकिन जस्ट फॉर गॉड सेक कीप योर हैंड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। यानी ऐसा करना कि कहीं मुस्लिम आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, सो कीप देयर ट्रस्ट ऑल्सो, कीप अ पार्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? ओके, so along with that, there are certain social group which may be spread across the country in a particular constituency. Their number may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. However, taken across the country, they are significantly sizable group. अब देखो कई बार ऐसा सिस्टम हो सकता है कि कोई एक ऐसा ग्रुप है हमारी कंट्री का कि जो पूरी कंट्री में तो कहीं कहीं पर एक्सपेंडेड है, बट पूरी कंट्री की कोई एक ऐसी लोकेलिटी नहीं है जहां पर उनका साइज लार्ज स्केल में आपको मिलता है, मतलब उन्हीं की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। सो टू एंश्योर देयर, अब देखो अगर आपने इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो एक ग्रुप छूट जाएगा, राइट? इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, आ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी। अब ऐसे ही, क्योंकि हम देखो अगर हम ऐसे सिस्टम देखते हैं कि जहां जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये भी इतना सफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनकी कंट्री में तो काउंटेबल स्ट्रेंथ है, बट एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस पे उनकी काउंटेबल स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम। Got it? The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for the scheduled caste and scheduled tribes. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और लोकसभा में भी स्टेट हमने क्या कर रखा है, कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करते हो तो एससी कैंडिडेट के लिए 84 सीट्स आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम पे जितना इलेक्शन हो रहा है, और एसटी के लिए 47। दिस इज द डेटा, ओके? अब देखो दिस प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020।
हालांकि अभी और भी इंक्रीज हो गया, 2030 तक भी इंक्रीज हो गया। मतलब हर बार हम इसको 10 ईयर के लिए इंक्रीज कर देते हैं। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स। और हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है जब भी ये टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला होता है। The number of seats reserved for both of these groups in a proportion to their share in the population of India. और ये सीट्स देखो रिजर्व कैसे होती हैं? सीट्स रिजर्व होती हैं जितना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग सीट्स रिजर्व होती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोक सभा, 84 आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड 47 आर रिजर्व्ड फॉर एसटी। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, राइट? गॉट इट? मतलब हमने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। वी हैव अडॉप्टेड रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका बेनिफिट क्या है कि कंट्री भी यूनाइट हो जाती है, और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के माइंड में ये भी नहीं शो होता है, ये भी नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो इनसिक्योर है, राइट? So the system of our country worked in a very sufficient manner, or you can say in an appropriate manner. So this paragraph we will discuss in next video. Okay, I hope you are able to understand the reason of FPTP system, reason for the success of Indian FPTP system. Along with that, you are able to understand concept of reserved constituencies, right? And hope till now everything is completely clear to you. If you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in comment section. Okay, next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.